Hello friends, this is Sushil Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of CS and IT, Christ College, Jagdalpur. This video covers to B.Sc. Second Year Computer Science, Paper 2, Computer Software, Unit 3 and title is Function. This video also covers to B.Sc. Second Year Information Technology, Paper 2, paper name Programming with C++, Unit 2 and unit title is function. Contents of this video are function, which will cover function declaration, calling function, function defines, passing arguments to function, passing constant, passing value, reference argument, returning by reference, inline function, function overloading and default arguments in function. And lastly we will see the references. Let us start with function. What is a function? A function is a subprogram that has to perform the task on data and often returns a value. एक फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जिसको किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। मूलतः यह डेटा पर कार्य करने के लिए बनाया जाता है। When the function name is encountered in a program, the execution of the program branches to the body of the function. जब भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कंपाइलर को कोई फंक्शन प्राप्त होता है तो वह उसके एग्जीक्यूशन के लिए उस पर्टिकुलर फंक्शन की बॉडी में मूव करता है। When the function is finished, execution returns to the area of the program code from which it was called and the program continues on to the next line of the code. जब फंक्शन के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए जाते हैं तब वापस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मूल प्रोग्राम में आता है और उसके बाद की लाइनों को वो कंटिन्यू करता है। अ फंक्शन इज ऑल्सो नोन विथ वेरियस नेम लाइक अ मेथड और अ सब रूटीन और अ प्रोसीजर एटसेट्रा। फंक्शन को हम अन्य नामों से भी जैसे मेथड, सब रूटीन या प्रोसीजर के नामों से जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का वर्गीकरण। Depending on whether a function is predefined or created by programmer, it can be categorized. फंक्शन को इसके आधार पर कि क्या यह पहले से डिफाइन किया गया है अथवा प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया है, इसको हम निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला लाइब्रेरी फंक्शंस और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला लाइब्रेरी फंक्शन। Library functions are the built-in functions in C++ program. The C++ standard library provides a rich collection of functions for performing common mathematical calculations, string manipulations, character manipulations, input-output, error checking and many other useful operations. लाइब्रेरी फंक्शंस C++ के कंपाइलर के द्वारा प्रदत्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस का समूह होता है जहाँ पर कुछ गणित के कैलकुलेशंस, स्ट्रिंग के मैनिपुलेशंस, कैरेक्टर मैनिपुलेशंस, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशंस, एरर चेकिंग या अन्य कई कार्यों के लिए किया जाता है। सम कॉमन लाइब्रेरी फंक्शंस आर मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइडेड इन cmath.h header file. Some important mathematical functions are sin, cos, tan, asine, acos, log, power, etc. Input output functions mainly works on input and output operations of the program. Character functions. All the character functions require cc_type.h header file. The character functions are is alpha, is digit, is alnum, is lower, is upper, etc. कैरेक्टर कन्वर्शन फंक्शंस। इन फंक्शंस का उपयोग कैरेक्टर को किसी अन्य फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। द हेडर फाइल cc type contains function prototypes that are mainly used for converting the character to upper or lower or to check if the character is a digit, etc. Function prototypes included in these header files are to upper, to lower, etc. String functions are
capable to work on string, date and time functions and other functions. Coming to user defined functions, C++ allows programmer to define their own functions. C++ यूजर्स को अपने फंक्शंस डिफाइन करने के लिए भी परमिट करता है. A user defined function groups code to perform a specific task and that group is code is given a name or identifier. ये यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम के कोड के ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं और इस ब्लॉक को हम किसी नेम से आइडेंटिफाई करते हैं. When the function is invoked from any part of the program, it all executes the codes defined in the body of function. जब इस फंक्शन को इन्वोक किया जाता है अथवा एग्जीक्यूट किया जाता है तब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उस फंक्शन के पार्ट में मूव कर जाता है और वहाँ पर के सारे टास्क को कंप्लीट करके वापस मूव करता है. क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर no arguments and no return value. A function is invoked without passing any formal argument from the calling portion of the program and also the function does not return back any value to the called function. जब हम किसी फंक्शन बॉडी को कॉल करते हैं तो कॉलिंग के दौरान हम किसी आर्ग्यूमेंट को लेकर उस फंक्शन में नहीं जाते हैं, अर्थात उस फंक्शन में हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं और न ही उस फंक्शन से कोई वैल्यू हम रिटर्न करते हैं. विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, अ फंक्शन इज इन्वोक्ड विथ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द कॉलिंग पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम बट द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग पोर्शन. जब किसी फंक्शन को इन्वोक किया जाता है तो मेन फंक्शन से नए फंक्शन में हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं लेकिन वापसी में मेन फंक्शन को हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं. विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू, दिस टाइप ऑफ फंक्शन passes some formal arguments to a function from a calling portion of the program and any value is transferred back to the caller. Data are communicated between both the calling portion of a program and the function block. जब हम किसी फंक्शन बॉडी को कॉल करते हैं तो मेन फंक्शन से उस पर्टिकुलर फंक्शन को कोई वैल्यू हम पास करते हैं, वापसी में एक वैल्यू हम उस फंक्शन को रिटर्न बैक करते हैं. क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं कंपाइलर को अथवा इसके प्रोटोटाइप किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं. अ फंक्शन डिक्लेरेशन कॉल्ड द फंक्शन प्रोटोटाइप tells the compiler about a function name and how to call the function. फंक्शन डिक्लेरेशन अथवा फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को यह सूचित करता है कि फंक्शन का क्या नाम होगा और यह किस तरह से कार्य करेगा. द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली. फंक्शन की एक्चुअल बॉडी अलग से डिफाइन की जाती है. अ फंक्शन डिक्लेरेशन हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स. इसको इस सिंटेक्स के द्वारा बनाया जाता है, डिफाइन किया जाता है. रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड विद इन द पैरेंथेसिस पैरामीटर लिस्ट इफ इट हैज. यदि कोई पैरामीटर भेजा जाएगा तो उसकी लिस्ट अथवा उसका टाइप यहाँ पर बतलाया जाता है. सेकेंड, कॉलिंग फंक्शन. टू इन्वोक और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन, यदि कोई फंक्शन बनाया गया है तो उसको इन्वोक अथवा एग्जीक्यूट करने के लिए इट नीड्स टू कॉल इट, उसे कॉल करना होता है. द वे टू कॉल एनी फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द डिक्लेरेशन. किसी फंक्शन को कॉल करना उसके डिक्लेरेशन करने के समान होता है एक्सेप्ट दैट द रिटर्न टाइप इज नॉट यूज्ड. यहाँ पर हम रिटर्न टाइप का उपयोग नहीं करेंगे. द कॉल इज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन. जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अथवा लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है. To call a function, the following syntax should be used. किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए इस सिंटेक्स का उपयोग किया जाना चाहिए. फंक्शन नेम विद इन द पैरेंथेसिस पैरामीटर और पैरामीटर्स इफ इट हैज. फंक्शन डेफिनेशन. A function definition tells the compiler what task the function will be performing.
फंक्शन डेफिनेशन कंपाइलर को यह सूचित करता है कि वह क्या कार्य करने जा रहा है। While creating a C++ function, give a task to the function what has to do। जब C++ में कोई फंक्शन बनाया जाता है तो वहाँ पर उसके टास्क डिफाइन किए जाते हैं। Syntax of the function definition is as follow: return type, function name, and within the parenthesis parameter or parameters, and within the braces function body will be defined. Fourth, passing arguments to functions. An argument is a piece of data passed from a program to the function। एक आर्ग्यूमेंट कोई एक डेटा होता है जो कि प्रोग्राम से फंक्शन में पास किया गया होता है। If a function is to use arguments, it must declare variables that accept the values of the arguments। जब किसी फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट यूज किया जाना होता है तो उसके लिए प्रॉपरली वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाने चाहिए जो कि उन आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस करे और एक्सेप्ट करे। Consider this example: write a C++ program to add any two numbers using function। After header file we have this prototype int add int comma int। इट्स अ फंक्शन प्रोटोटाइप। यह फंक्शन का प्रोटोटाइप अथवा फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट है जहाँ पर कंपाइलर को यह बतलाया जा रहा है कि फंक्शन नेम ऐड होगा और इसमें दो इंटीजर आर्गुमेंट्स पास किए जाएंगे और यह एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न भी करेगा। यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया बाय टाइपिंग ऐड num1 num2। कंसिडर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यूज हैं, दोनों में इंटीजर एक्सप्रेशंस हैं और ये ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किए जा रहे हैं। इट्स कॉलिंग फंक्शन एंड ऐड दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फर्स्ट पैरामीटर के वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल को और सेकंड पैरामीटर के वैल्यू सेकंड वेरिएबल को पास की जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि num1 और num2 एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाएंगे और a और b फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे। आफ्टर एडिंग बोथ द नंबर्स वी आर गोइंग टू रिटर्न देयर सम। और रिटर्न हो रहा है और while returning it is getting an integer expression which is sum of the both the numbers and afterwards it is assigning to some variable। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन में काम कर सकते हैं।